आदाब है नाज़रीन, मैं आसिफ अली और आप देख रहे हैं रूबी उर्दू न्यूज़। सबसे पहले नजर डालेंगे अहम खबरों पर। धान खरीदी के मामले में रियासत की सियासत में गर्मी। वज़ीर आला KCR की क़यादत में मरकजी हुकूमत के खिलाफ इंदिरा पार्क पर महाधरना। अंदरून 2 यौम किसानों से धान खरीदी का ऐलान करने का किया गया मुतालबा। वज़ीर आला KCR ने धरने पर बैठने से कबल इमाम जामिन पहनने से किया इनकार। वज़ीर दाखिला महमूद अली मायूस। हुज़ुराबाद ज़िमनी इंतखाब के नतीजे का असर, वीडियो हुआ वायरल। वज़ीर आला KCR रियासत के किसानों की मौत के जिम्मेदार। किसानों के मामले पर एहतजाज एक ड्रामा। ई राजेंद्र ने KCR पर लगाया इल्ज़ाम। ईस्ट जोन टास्क फोर्स टीम और अफजलगंज पुलिस की मुश्तरका कार्रवाई। 57 लाख रुपये मालियती ममनुआ जर्दा प्रोडक्ट्स किए गए जब्त। कमिश्नर पुलिस की मीडिया कॉन्फ्रेंस। सदर मजलिस बैरिस्टर ओवैसी की हिदायत पर मुख्तलिफ ज़िलाई MIM यूनिट्स ने मलून वसीम रजवी के खिलाफ दर्ज करवाई शिकायत। फौरी गिरफ्तारी का किया गया मुतालबा। देखते हैं खबरों की तफसील। वज़ीर तेलंगाना के चंद्रशेखर राव की क़यादत में TRS हुकूमत ने मरकजी हुकूमत के खिलाफ ज़बरदस्त एहतजाज करते हुए मुतालबा किया है कि अंदरून 2 यौम किसानों से धान खरीदी का ऐलान करें। वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव तेलंगाना के किसानों से धान खरीदी से मुताल्लिक़ अंदरून 2 रोज़ वजाहत करने का मुतालबा कर रहे हैं। इंदिरा पार्क पर इस सिलसिले में महाधरना मुनज़्ज़म किया गया, जिसमें रियासती वज़रा, अरकान पार्लियामान, अरकान असम्बली के अलावा पार्टी कायदीन मौजूद थे। इस धरने को खिताब करते हुए वज़ीर तेलंगाना के चंद्रशेखर राव ने मरकज़ी हुकूमत को इंतबाह दिया कि अगर अंदरून 2 रोज़ धान की खरीदी से मुताल्लिक़ वजाहत नहीं की गई और पंजाब की तर्ज पर 40% के बजाय 90% खरीदी को मुमकिन नहीं बनाया गया तो वो और रियासती वज़रा दिल्ली तक यात्रा निकालेंगे। और याद दिलाया कि 2004 में गुजरात के वज़ीर आला के ओहदे पर मोदी जब फाइज थे, उन्होंने 72 घंटे एहतजाज में हिस्सा लिया था। ఇట్లా అనేక రకాలుగా ఇబ్బంది పెట్టినా కొత్తగా వచ్చిన రాష్ట్రం కాబట్టి అనేక సర్దుబాట్లు చేసుకోవాలి కాబట్టి అనేక రంగాలు ఘోరంగా ఉన్నాయి కాబట్టి చాలా ఓపిక పట్టినాం. కానీ ఏ ఓపికకైనా ఒక హద్దు, ఒక పద్ధతి అనేది ఉంటుంది. నేను భారత ప్రధాని నరేంద్ర మోడీ గారికి ఒకటే మాట సూటిగా అడుగుతా ఉన్నా. ఈ సభలో కూడా మీ CIDలు ఉన్నారు, నాకు తెలుసు ఆ విషయం. నేను మాట్లాడే మాట పావు గంట లోపల మీ టేబుల్ మీదకి వస్తుంది, ఆ విషయం నాకు తెలుసు. నేను ఒక్కటే మాట మిమ్మల్ని అడుగుతా ఉన్నా, చేతులు జోడించి అడుగుతా ఉన్నా. నిన్న కూడా నేను లెటర్ రాసిన 50 రోజుల నాడు మంత్రులు, నేను, అధికారులు అందరం వెళ్ళి దండం పెట్టి అడిగిన మా మంత్రి గారిని, అయ్యా మీరు వడ్లు కొంటరా కొనరా? కొనము అని చెప్తే చెప్పండి, మేము రైతులకు చెప్తాం, వేరే పంటలు వేయమని చెప్తాం, పండిన కాడికే బతుకుతాం, కానీ పండించి ఆగం కావద్దని చెప్పి అడిగితే ఇయాలటికి ఉలుకు లేదు, పలుకు లేదు. 50 రోజులు గడిచిపోతాయి. ఆ తదనంతరం ఫోన్లలో మాట్లాడితే జవాబు రాదు. మేము విదేశాలకు పోయినాం, మేము ఇక్కడ లేం, ఇంకో వారానికి చెప్తాం, ఇంకో వారానికి చెప్తాం. 50 రోజులు గడిచిపోయినాయి. దాని తర్వాత పరిణామం ఏంది? వీళ్ళు చేసేటట్టు లేరు, వడ్లు కొనేటట్టు లేరు, యాసంగిలో వేస్తే బాధపడతామని వద్దు అని చెప్పి మంత్రి గారు చెప్తే మీరు వడ్లే వేయాలి అని అధికార పార్టీ వాళ్ళు మాట్లాడతారు. మరి వడ్లు వేయాలి, ఆర్డర్ తీసుకొని రా. నేను చెప్పిన, నేనే నిలబడి, నేనే ఇత్తనాలు సప్లై చేసి, బ్రహ్మాండంగా ఎరువులు సప్లై చేసి, ఫుల్ కరెంట్ ఇచ్చి, నీళ్ళు ఇచ్చి, మేమే 70 లక్షల ఎకరం వరి వేయిస్తామని చెప్పినాం. దానికి సమాధానం రాదు. వానకాలం వడ్లు కొంటరా కొనరా అంటే కొనరు, దానికి సమాధానం లేదు. యాసంగి ఏమని రైతులను ప్రోత్సహిస్తాడు? ఏం కావాలి? వీళ్ళ నీతి ఏంది? వడ్లు కొనాలి, అవి మేము కొనం, ఈడ బజార్లో పోయాలి, దాని మీద మేము రాజకీయ నాటకం ఆడాలి. ఇదేనా నాటకం? బిడ్డ, మేము ఒక్కటే చెప్తా ఉన్నాం, తీసుకుంటాము అని చెప్పి FCI లెటర్ ఇస్తే మీ గత యాసంగిలో 50 లక్షల టన్నుల బియ్యం ఇచ్చినాం, ఇంకా 5 లక్షలు అక్కడనే ఉన్నాయి. మీరు తీసుకోకపోతే
మా రైతుల మీద చుట్టూ దింపి దిష్టి తీసినట్టు చేసి ఆ బియ్యం తెచ్చి మీ బీజేపీ ఆఫీసు మీద కుమ్మరిస్తాం జాగ్రత్త అని చెప్తా ఉన్నా. మీరు అనుకుంటున్నారేమో ముఖ్యమంత్రి పదవి కోసం మంత్రి పదవుల కోసం మేము భయపడతామని. పదవులను ఎట్లా చిత్తు కాయిదాలాగా ఇసిరేసినామో, ఎన్నిసార్లు రాజీనామాలు చేసినామో, మంత్రి పదవులు, కేంద్ర మంత్రి పదవులు, ఎంపీ పదవులు, ఎమ్మెల్యే పదవులు ఎన్నిసార్లు తెలంగాణ కోసం పాడేసినామో మీకు తెలుసు. అవసరమే అనుకుంటే, తప్పదు అనుకుంటే తప్పకుండా తెలంగాణ రాష్ట్ర సమితి భారత రైతాంగ సమస్యల కోసం తానే లీడర్షిప్ తీసుకుంటుంది, ముందుకు పోతుంది. మీ మెడలు వంచుతాం గ్యారంటీగా నేను మనవి చేస్తా ఉన్నా. మీ కూటనీతిని, మీ యొక్క దుర్మార్గమైన విధానాలను, మీ రైతు వ్యతిరేక చట్టాలను చివరి రక్త బొట్టు దాకా పోరాటం చేస్తాం తప్ప మిమ్మల్ని వదిలిపెట్టమని చెప్పి నేను మనవి చేస్తా ఉన్నా. అనేక సమస్యలు పెండింగ్లో పెట్టినారు, అనేక విషయాలున్నాయి, ఒకటి రెండు కాదు. దళితుల వర్గీకరణ శాసనసభ తీర్మానం చేసి పంపించింది, దాని మీద కుయ్యి లేదు, కుట్టుకు లేదు. గిరిజనులకు మా గిరిజనులు పెరిగినారు, మా గిరిజనుల శాతం పెరిగింది. రిజర్వేషన్ ఇవ్వమని అడిగితే శాసనసభ ఏకగ్రీవంగా తీర్మానం చేస్తే దానికి దిక్కు లేదు. ఇట్లా అనేక సమస్యలు పెండింగ్లో పెట్టినారు. हैदराबाद ज़िमनी इंतखाब के नतीजे का असर वज़ीर-ए-आला तेलंगाना के चंद्रशेखर राव के कामों से आया होता नजर आ रहा है। मीडिया में महाधरने की वायरल वीडियो में देखा गया है कि धरने पर बैठने से कबल वज़ीर-ए-आला केसीआर ने इमाम जामिन पहनने से इनकार किया। हमेशा की तरह टीआरएस सीनियर कायद वज़ीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली वज़ीर-ए-आला को इमाम जामिन पहनाने की गरज से स्टेज पर आगे बढ़े और जैसा ही वो केसीआर के करीब आए, केसीआर ने उन्हें हाथ पकड़ते हुए बाजू कर दिया। ज़राए के मुताबिक हैदराबाद ज़िमनी इंतखाब में हुई शिकस्त के लिए वज़ीर-ए-आला मकामी मुस्लिम वोटर्स को जिम्मेदार गर्दानते हैं। ये भी एक वजह हो सकती है कि उन्होंने इमाम जामिन पहनने से इनकार किया हो। सदर कुल हिंद मंशहादुल मुस्लिमीन रुकन पार्लियामान हैदराबाद बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी की हिदायत के बाद मुख्तलिफ अजला के यूनिट्स मलून वसीम रजवी के खिलाफ मुतल्लिका पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज करवा रहे हैं। नाज़रीन ग्रामी, इन खबरों के साथ आइए दीगर खबरों पर तफसीली नज़र डालेंगे मोहम्मद अख्तर के साथ। शान रिसालत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में गुस्ताखी करने वाले मलून वसीम रज़वी के खिलाफ सदर मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी की क़यादत में कमिश्नर पुलिस से की गई शिकायत के बाद कामाटीपुरा पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया है। गुज़िश्ता रोज़ सदर मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी की क़यादत में मजलिसी अरकान मुक़न्ना के वफ़द ने कमिश्नर पुलिस अंजनी कुमार से नुमाइंदगी करते हुए मलून वसीम रज़वी की गुस्ताखाना सरगर्मियों पर मुश्तमिल शिकायत हवाले की थी, जिसका फ़ौरी नोट लेते हुए वसीम रज़वी के खिलाफ कामाटीपुरा पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज कर ली गई है। बैरिस्टर ओवैसी ने अपने ट्वीट पर इसकी तस्दीक की और इस उम्मीद का इजहार किया है कि जल्द ही उस पर कार्रवाई होगी। सदर मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी की हिदायत पर विकाराबाद ज़िले के तांडूर में मलून वसीम रज़वी के खिलाफ शिकायत दर्ज करवाई गई। तांडूर मजलिस के सदर की क़यादत में डीसीपी लक्ष्मी नारायण को शिकायत हवाले की गई। उनके हमरा मुकामी मजलिस के कारकुनान भी मौजूद थे। मैं सदर मोहतरम बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब की हिदायत पर तांडूर मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के ज़िम्मेदार और कारपोरेटर और नौजवानों की तमाम को लेकर डीएसपी ऑफिस में आए और डीएसपी ऑफिस में डीएसपी साहब के हाथ में हम एक कंप्लेंट कॉपी दिए और हम ये गुजारिश किए हैं कि सब मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन और सारे मुसलमान हम पीसफुल तरीके से आपके सामने आकर ये कंप्लेंट दे रहे हैं। आप इसको सुप्रीटेंडेंट ऑफ पुलिस तक पहुँचाएँ और एफआईआर इशू करें और फ़ौरन इब्लीस की औलाद
ये वसीम रज़वी को अरेस्ट किया जाए है। ये मलून जो शिया वक्फ बोर्ड का चेयरमैन था, शिया के लोगों को भी बहुत ही सताया है और बहुत ही ये किया है। आज क्या हाल है उसका कि उसकी बीवी बच्चे जो उसकी ज़िंदगी का आखिरी सरमाया था, उन्होंने भी उसका हाथ छोड़ दिया है, जो प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी किया है। मैं सारी दुनिया बिलखुसूस हिंदुस्तान के मुसलमानों से इस बात की गुजारिश करता हूँ कि आप पुरअमन तरीक़े से अपने अपने करीबी पुलिस स्टेशनों के अंदर जाकर आप एक FIR इशू कराइए और वो मलून को अरेस्ट कराने की आप लोग अपने अपने डिपार्टमेंट और पुलिस वालों से गुजारिश कीजिए। मैं यकीन मुसलमानों को और नौजवानों को इस बात की हिदायत करता हूँ कि हम लोग 5 वक्त के नमाज के पाबंद हो जाएं और नबी के लाए हुए दीन पर हम चलते हुए अड़ोस पड़ोस हिंदू भाइयों से हम तमाम से मेल जुल कर अपने हिंदुस्तान की हिफाजत के लिए हम आगे आएँ और इस मलून को अल्लाह ताला नीस्त और नाबूद कर दे। ये चंद कलमात मैं आपके सामने रख रहा हूँ। सदर मजलिस और रुकन पार्लिमान हैदराबाद बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी की हिदायत के बाद मुख्तलिफ अजला के यूनिट्स मलून वसीम रज़वी के ख़िलाफ़ गुस्ताख़ रसूल का मुर्तकिब होने पर शिकायत दर्ज करवा रहे हैं। इस सिलसिले के तहत नागर कर्नूल डिस्ट्रिक्ट कमेटी की जानिब से मुताल्लिक़ा सुप्रीडेंट से मुलाकात करते हुए एक शिकायत भी दर्ज करवाई गई और उसे फौरी गिरफ्तार करने का भी मुतालबा किया गया। डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट MIM यूनिट जावेद अहमद ने वफ़द की क़यादत की। विजय नागर कर्नूल MIM पार्टी सदर साहब की इजाज़त से मैं ये आज तस्दीक कर रहा हूँ कि रिजवी के खिलाफ जो गुस्ताखाना अंदाज में अपने आप को बयान फरमा रहा और इसी के सिलसिले में लेके सदर साहब असदुद्दीन ओवैसी साहब की इजाज़त से आज SP ऑफिस को आया गया और हमारे सारे नुमाइंदे डिस्ट्रिक्ट के आकर इसका रिप्रेजेंटेशन SP को दिए और इसका एंडोर्समेंट है। ये इंशाल्लाह इसके ऊपर ज़रूर कुछ ना कुछ कार्रवाई होगी। अल्लाह से उम्मीद करते हुए हम इस चीज़ को बयान फरमाते हैं। अल्लाह करे इसकी ज़ुबान निकाल लें, आमीन, और अल्लाह करे इसको ऐसी अजाब में मुब्तला करे कि ज़िंदगी में ये कभी अपने आप को इंसान महसूस ना करे, आमीन। शुक्र है अल्लाह का कि कुरान में कहीं भी जो है इसका जिक्र नहीं किया, वरना ये बहुत बड़ा आदमी बन जाता। लिहाजा अल्लाह करीम इसकी ज़रूर इसके ऊपर फैसला करेगा और आवाम से हमारी अपील है कि जहां तक हो सके सब्र से काम लें, जज्बात से काम ना लें, क्योंकि हिफाजत हमारी साथ साथ सबकी करने की जिम्मेदारी हम पर है। इंशाअल्लाह हम सबके साथ चलेंगे, आमीन। वज़ीर ज़राअत निरंजन रेड्डी ने इंदिरा पार्क के धरने से खिताब करते हुए बताया कि वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव को किसानों से कितनी हमदर्दी है, इस बात से अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि ख़ुद वज़ीर आला किसानों के मसाइल पर धरने में हिस्सा लेते हुए मरकज़ी हुकूमत से मुतालबा कर रहे हैं कि वो रियासत के हर देहात में धान की खरीदी के लिए IKP सेंटर कायम करें। उन्होंने बताया कि तेलंगाना की तश्कील के बाद वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव की क़यादत में किसानों को मुफ्त 24 घंटे बरखी सरबराह करने, रैतु बंधु और रैतु बीमा स्कीम मुतारिफ़ करवाने से रियासत के किसान खुशगवार माहौल में अपनी ज़िंदगी गुजार रहे थे, लेकिन मरकज़ की जानिब से धान की खरीदी ना करने के बायस किसान माली मुश्किलात से दो चार हुए हैं। మా గోడు ఇది ఆలకించండి అని కేంద్రాన్ని డిమాండ్ చేయాల్సి రావడం, సాక్షాత్తు ఒక రాష్ట్ర ముఖ్యమంత్రిగా రైతాంగ ప్రయోజనాల కోసం ఒక మహా ధర్నాకు పూనుకోవడం, రాష్ట్రంలో ఉండేటువంటి యావత్తు ప్రభుత్వం ప్రజాప్రతినిధులు రాష్ట్ర నలుమూలల నుంచి వచ్చి ఇవాళ కేంద్రానికి ఈ రాష్ట్ర ప్రయోజనాలు ఏందో, మీ విద్యుక్త ధర్మం ఏందో మీరు గుర్తించండి అని చెప్పి మనవి చేయడానికి ఈ ధర్నాకు పూనుకోవడం అనేటువంటిది విచారకరం. కానీ మనకు తప్పడం లేదు. 7 ఏళ్ల కాలంలో అద్భుతాలు సృష్టించినాం మనం కేసీఆర్ గారి నాయకత్వాన. ఈరోజు పచ్చబడినాయి పల్లెలన్నీ. ఏ రైతు కుటుంబంలో చూసినా ఆనందం వెల్లివిరుస్తున్నది. ఒక నమ్మకం ఏర్పడ్డది, ధీమా ఏర్పడ్డది, మేము బతకగలం, ఇంకా ఢోకా లేదు మా బతుకులకని. ఇప్పుడిప్పుడే కుదుట పడినటువంటి తెలంగాణలో ఈరోజు కేంద్ర ప్రభుత్వం అవలంబిస్తున్నటువంటి बीजेपी रुकन असम्बली ए राजेंद्र ने पार्टी ऑफिस में मीडिया से बात करते हुए वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव पर सख्त तनकीद की और इल्ज़ाम आयद किया कि तेलंगाना के किसानों की मौत के ज़िम्मेदार वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव हैं, ना कि मरकज़ी हुकूमत।
उन्होंने बताया कि IKP सेंटर पर धान पहुंचाने के लिए आज भी तेलंगाना के किसानों के पास ट्रैक्टर मौजूद नहीं है, जिसकी वजह से किसानों पर इजाफी माली बोझ आयद हो रहा है। ई राजेंद्र ने बताया कि वज़ीर आला मरकज़ पर धान की खरीदी के मसले को लेकर बेबुनियाद इल्ज़ामात आयद कर रहे हैं। రాష్ట్రం తెలంగాణ అని చెప్పింది. ఆ నిండు సభలో ఎక్కడ కూడా కేంద్ర ప్రభుత్వం కొంటుందని కానీ సహకరిస్తుందని కానీ మోడీ గారి ప్రస్తావన ఎక్కడ లేదు. నేనే కొంటున్నా, నేనే ఆదుకుంటున్నటువంటి పోజు పెట్టింది ముఖ్యమంత్రి. కానీ ఇవాళ అర్థమైపోయింది. ఇవాళ అర్థమైంది, ఓహో ఈ వడ్లు కొంటున్నది కేసీఆర్ కాదని, వడ్లు కొంటున్న వడ్లకి డబ్బులు, IKP సెంటర్లో మహిళలకిచ్చే కమిషన్, గన్నీ బస్తాలు, సుతుల్ దారం, హమాలీ ఛార్జీలు, ట్రాన్స్పోర్ట్ ఛార్జీలు, कांग्रेस रुकन खानसास कौंसल जीवन रेड्डी ने कांग्रेस के धरने में शिरकत करते हुए बताया कि रियासत के किसानों से धान की खरीदी के मसले पर मरकजी और रियासती हुकूमतें ड्रामाबाजी कर रही हैं। उन्होंने वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव की जानिब से इंदिरा पार्क के पास दिए जाने वाले धरने पर तबसरा करते हुए बताया कि वज़ीर आला को किसानों से धान की खरीदी के मसले पर इंदिरा पार्क की बजाय दिल्ली के जंतर मंतर पर धरना देना चाहिए था और मरकजी हुकूमत के हर फैसले की तायीद करने से उन्हें गुरेज करना चाहिए। भारतीय जनता युवा मोर्चा BYJM के कारकुनों ने बीजेपी पार्टी ऑफिस तक पब्लिक सर्विस कमीशन के दफातर तक रैली निकालने की नाकाम कोशिश की। BYJM कारकुनों ने सरकारी महकमे जात में मुलाजमतें फराहम करने का मुतालबा करते हुए और फौरी तौर पर एलामिया जारी करने के लिए नारेबाजी की। पुलिस और BYJM के कारकुनों के दरमियान कुछ देर तक तसादुम जारी रहने के बाद पुलिस ने BYJM कारकुनों को हिरासत में लेते हुए पुलिस स्टेशन मुंतकिल किया। कांग्रेस कायदीन ने CLP कायद भट्टी विक्रमार्का की क़यादत में नामपल्ली बाग़यामा ता एग्रीकल्चर कमिश्नर ऑफिस तक किसानों से धान की खरीदी के मसले को लेकर धरना मुनज़्ज़म किया। भट्टी विक्रमार्का ने मीडिया से बात करते हुए बताया कि न तो वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी और न ही वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव किसानों से धान की खरीदी के मसले को लेकर संजीदा हैं, जिसकी वजह से रियासत के किसान माली मुश्किलात से दो चार हैं। इस धरने में रुकन पार्लियामेंट उत्तम कुमार रेड्डी, रुकन खानसास कौंसल जीवन रेड्डी, मल्लू रवि, सीताक्का और दीगर ने भी शिरकत की। పెద్దలు గౌరవనీయులు పార్లమెంట్ సభ్యులు మాజీ PCC అధ్యక్షులు ఉత్తమ్ కుమార్ రెడ్డి గారిని వారి ప్రసంగం ఇవ్వాల్సిందిగా మినిస్టర్ గా ఉన్నప్పుడు మీరు ఏ రాష్ట్రంలో కూడా పార్లమెంట్ లో ఏ రాష్ట్రంలో కూడా మీరు ఆ రాష్ట్రాలే కొని తప్పకుండా ఒకవేళ మీకు ఏమన్నా అందుబాటులో ఒకవేళ మీకు हल्का असम्बली राजेंद्र नगर के बल्दी डिवीज़न शास्त्रीपुरम में तरक्याती इक़दामात के तहत मुख्तलिफ बल्दी मसाइल की यकसोई के लिए मुतल्लिक़ा कॉरपोरेटर मोहम्मद मुबीन के पैदल दौरे जारी हैं। शास्त्रीपुरम डिवीज़न के इलाके हसन नगर, डायमंड हिल्स और माजी की दरगाह के इलाके में कॉरपोरेटर मोहम्मद मुबीन ने जुमेरात को पैदल दौरा करते हुए ज़ेर-ए-इल्तिवा बल्दी कामों का जायज़ा लिया। कॉरपोरेटर मोहम्मद मुबीन ने बताया कि सदर मजलिस और रुकन पार्लिमान बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी की हिदायत पर
मज़कूरा इलाक़ों का दौरा करते हुए यहाँ पर जारी तामीरी कामों का जायज़ा लिया गया और मुकामी आवाम से मुलाकात करते हुए उनके मसाइल की जानकारी भी हासिल की गई, जहाँ मज़कूरा इलाक़ात में ड्रेन पाइपलाइन और सीसी रोड के अलावा वाटर पाइपलाइन के काम भी जारी हैं। अपने दौरे के दौरान कॉरपोरेटर मोहम्मद मुबीन ने मुतालिका बल्दी और आबरसानी के ओहदेदारों को कामों में तेज़ी पैदा करने की हिदायत दी, जबकि मुख्तलिफ कामों की निशानदेही करवाते हुए उसे जल्द तकमील करने पर भी जोर दिया गया। इस मौके पर मुकामी मजलिसी सरगर्म कारकुनान और सदूर व इब्तदाई भी मौजूद थे। तेलंगाना कांग्रेस के लीडर श्रीधर बाबू ने वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव के धरने को ड्रामा करार दिया। मीडिया से बात करते हुए श्रीधर बाबू ने कहा कि धान की खरीदी रियासत की भी जिम्मेदारी होती है, लेकिन केसीआर हुकूमत अपनी जिम्मेदारी से राह फरार इख्तियार कर रही है। उन्होंने कहा कि मरकज़ और रियासत किसानों को गुमराह कर रहे हैं, जबकि दोनों को किसानों के मसाइल से कोई दिलचस्पी नहीं है और ये धरना किसानों की आंखों में धूल झोंकने के लिए मुतरादिफ है। Elected governments, the BJP government in Delhi and TRS government in Hyderabad, in Telangana, are playing a dual role wherein they just want to divert the issue of the farmers to purchase the paddy. We have been demanding, and part of Congress party, we are demanding the central and the state government to purchase each and every grain of the paddy which is being produced by the farmers. Our point is, when the state responsibility is to procure by keeping IKP centers or paddy procurement centers through different agencies, their job is to procure each and every grain from the farmer. They are absolving the responsibility and pushing the responsibility towards center. And center, in order to divert the farmers' attention, they are stating that the state government has to procure and we don't have any say. These two are the friendly parties till now. BJP and TRS are the friendly parties till now. They have been colluded in almost every policy matter which is being made by the central government. Now we are demanding why state government is doing a dharna in Hyderabad. तारीखी चारमीनार के पास चारशंबे की रात निशान मुबारक की इस्तादगी अमल में आई। गैर मामूली इंतजामात के दौरान हाथी पर निशान मुबारक को लाया गया। रुकन असम्बली याकूतपुरा सईद अहमद पशा क़ादरी और साबिक़ कॉरपोरेटर मोहसिन बलाला इस मौके पर मौजूद थे, जबकि अक़ीदतमंदों की भी बड़ी तादाद इस मौके पर देखी गई। वाज़ेह है कि मज़कूरा जुलूस हर साल अक़ीदत व एहतराम के साथ निकाला जाता है।
जीलानी शैनिल्लाह या जीलानी शैनिल्लाह या जीलानी शैनिल्लाह। रंगारेड्डी ज़िले बुधवेल रेलवे स्टेशन बस्ती में एक शौहर के हाथों बीवी के कत्ल का वाक़या पेश आया। तफसीलात के मुताबिक मनीला मीना और इसके शौहर जंगैया के दरमियान आए दिन झगड़े और बहस व तकरार हुआ करती थी। चारशंबे की रात भी जंगैया और इसकी बीवी के दरमियान बहस व तकरार हुई। जंगैया ने वजनी पत्थर से अपनी बीवी पर हमला करते हुए उसका कत्ल कर दिया। पड़ोसियों की इतला पर पुलिस मुकाम वाक़े पर पहुंची और नाश को पोस्टमार्टम के लिए हॉस्पिटल मुंतकिल किया गया, जबकि इस मामले के लिए मज़ीद तहक़ीक़ात जारी है। मारकपल्ली इलाके में वाक़ एक रेस्टोरेंट में अचानक आतिशज़दगी का हादसा पेश आया। मुतल्लिक़ा पुलिस के मुताबिक शॉर्ट सर्किट की वजह से यह हादसा पेश आया, जबकि इत्तला मिलते ही आतिश फ़रो अमले ने मुकाम हादसे पर पहुंचकर आग पर काबू पाया। मुतल्लिक़ा पुलिस ने सिलसिले में ज़ाब्ते की कार्रवाई अंजाम दी। ईस्ट जोन टास्क फोर्स टीम ने अफजलगंज पुलिस के इश्तराक से कार्रवाई करते हुए न्यू उस्मानगंज में वाक़े एक गोदाम पर धावा किया और ममनुआ जर्दा प्रोडक्ट्स जुमला मालियती 57,07,640 रुपए जब्त किए। कमिश्नर पुलिस हैदराबाद अंजनी कुमार IPS के मुताबिक कर्नूल आंध्र प्रदेश के मुतवत्तिन डी चिन्ना राजू को हिरासत में लिया गया और 1475 ग्राम जर्दा प्रोडक्ट्स जब्त किए गए। कमिश्नर पुलिस अंजनी कुमार IPS ने मीडिया कॉन्फ्रेंस में इस सिलसिले में तफसीलात से वाकिफ करवाया। नमस्कार। हैदराबाद सिटी पुलिस ईस्ट जोन टास्क फोर्स की तरफ से एक इंटर स्टेट बैंड टोबैको सप्लायर की गिरफ्तारी हुई और अभी तक रिकवरी के मुताबिक 1475 kg ऑफ बैंड चूइंग टोबैको, जिसका मार्केट वैल्यू 57 लाख रुपीस से ज़्यादा है, उसका रिकवरी हुआ। और इस सिलसिले में अफजलगंज पुलिस स्टेशन के साथ टास्क फोर्स वालों ने गोडाउन रेड करके एक आदमी जिसका नाम है डी चिन्ना नागराजू, उसकी गिरफ्तारी हुई, जो बंडी मेट्टा कर्नूल जिला आंध्र प्रदेश का रहने वाला है। इस पूरे ऑपरेशन में हमारे DCP टास्क फोर्स चक्रवर्ती साहब के लीडरशिप में उनके ऑफिसर KV सुब्बा राव, इंस्पेक्टर ऑफ पुलिस और सब इंस्पेक्टर ऑफिसर C वेंकटेश, गोविंद स्वामी, G श्रीनिवास रेड्डी, P वासुदेव, ईस्ट जोन टास्क फोर्स की पूरी टीम और साथ में M रविंदर रेड्डी, इंस्पेक्टर ऑफ पुलिस अफजलगंज, ये लोग बहुत अच्छा काम किए हैं। इस मौके पे मीडिया और प्रेस के तरफ से पब्लिक को हम एक अपील करना चाहते हैं कि बैंड टोबैको, गांजा, इस तरह के आइटम के बारे में अगर कोई इन्फॉर्मेशन आपको है तो व्हाट्सएप मैसेज द्वारा 9490616555 इस पर व्हाट्सएप या कॉल करके आप इन्फॉर्मेशन दे सकते हैं। आपका आइडेंटिटी, आपका नेम, वो सीक्रेसी हम लोग मेंटेन करेंगे। थैंक यू सो मच। जहीराबाद के मंडल भाड़ी मलकापुर मगडमपल्ली में इखरा एजुकेशनल सोसाइटी की जानिब से मस्जिद तामीर करने का मंसूबा तैयार किया गया है। इस सिलसिले के तहत अमीर अमारत मिल्लत इस्लामिया मौलाना हुसामुद्दीन सानी अल मारूफ जाफर पाशा ने मस्जिद मुमताज़ अल मदीना का संग बुनियाद अपने दस्ते मुबारक से रखा। इस संग बुनियाद तकरीब में सोसाइटी के बानी और सदर मौलाना मोहम्मद सिद्दीक अहमद खादरी हुसामी के अलावा दीगर मेहमानान बशमूल सादुल्ला खान सबील और दीगर भी मौजूद थे। मौलाना जाफर पाशा ने सोसाइटी के जिम्मेदारान को इस सिलसिले में मुबारकबाद भी पेश की।
कहाँ है हमारे खाजा भाई? करम से अल्लाह हम घर को तो बना रहे हैं, घर वालों को भी आप पैदा फरमाए। ऐ अल्लाह इस घर को आबाद रखिए। ऐ अल्लाह अपने फल से इसको खुद भी हमको अता फरमा। ऐ अल्लाह हमको जो हमारी कोताहियाँ उसे माफ़ फरमा दे। आमीन। हमारी रंजिशों को माफ़ फरमा दे। ऐ अल्लाह हमारे तमाम कोताहियों को माफ़ फरमा दे। ऐ अल्लाह हमारे जितने भी दुआएं हैं, जितने भी तेलंगाना रियासती उर्दू एकेडमी की जानिब से नेशनल लाइब्रेरी वीक के ज़िमन में एक अदबी इजलास 20 नवंबर बरोज़ हफ्ता 11 बजे दिन ख्वाजा शौक हॉल वाक़े उर्दू मस्कन खिलवत में मुकर्रर है। डॉक्टर मोहम्मद गौस डायरेक्टर सेक्रेटरी तेलंगाना रियासती उर्दू एकेडमी सदारत करेंगे, जबकि डॉक्टर मोहम्मद अब्दुल कुद्दूस, डॉक्टर मोहम्मदी असरा, डॉक्टर मुख्तार अहमद फरदीन के अलावा आरिफुद्दीन अहमद मेहमानान के तौर पर मुखातिब करेंगे। तलबा तालिबात और मुहिब्बान उर्दू से शिरकत की ख्वाहिश की गई है। आइए देखते हैं वफ़े के बाद की खबरें। साउदर्न पुलिस की जानिब से चारशंबे की रात कामाटीपुरा पुलिस स्टेशन हदूद के इलाका जात मोइनपुरा और मिस्रीगंज में घर घर तलाशी मुहिम अंजाम दी गई। डीसीपी साउथ जोन गजराव भोपाल की क़यादत में की गई इस मुहिम में दरकार दस्तावेजात न होने पर तकरीबन 52 टू व्हीलर्स को जब्त किया गया, जबकि 14 राउडी शीटर्स को तलब करते हुए उनकी काउंसलिंग की गई। राउडी शीटर्स को ताकीद की गई कि अमन कानून की सूरत हाल को मुतासर करने की कोशिश की गई तो उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। याद रहे कि शहर में कत्ल के वाक़यात पर डीसीपी का कहना था कि सिर्फ एक ही कत्ल हुआ है, जबकि वक्ती बरहमी की वजह से दूसरे कत्ल हुए हैं। ये भी एक वजह है कि पुलिस 12 घर घर तलाशी मुहिम चला रही है। आज कामाटीपुरा एरिया में कोऑर्डिनेट सर्च करें। एसीपी चारमीनार दुष्यम रेड्डी साहब और इंस्पेक्टर कामाटीपुरा रामबाबू और उनके टीम पूरे यहाँ पे कोऑर्डिनेट सर्च करें। इसमें 52 व्हीकल सीज के, इसके पास ठीक तरह से डॉक्यूमेंट्स नहीं है और 14 राउडीज़ को काउंसलिंग के इसमें, और पूरी एरिया में पूरी सर्च किए और सब राउडीज़ को भी काउंसलिंग किया। हमारी मकसद है कि इस एरिया में अमन रहे, स्पेशली रात टाइम में जो हरकतें हो रहे हैं इसको कंट्रोल करने के लिए हम इस पर ज़्यादा फोकस कर रहे हैं। सर, इतना कार्डन सर्च करने के बाद में ख़ास तौर पे साउथ जोन में क्राइम बहुत बढ़ते जा रहा है। मर्डर नहीं, मर्डर हुए, किराई मर्डर तो एक भी नहीं हुआ इस साल में। एक रेन बाज़ार में हुआ, वो भी उसका चादरघाट का रोडी शीटर है वो। किराई मर्डर्स का तो एक भी नहीं हुआ इस साल का। जाननुमानी भी हुआ ना, फलकनुमानी मिल गया। उस सब लोग उनके भाई है जो किए, उनके रिश्तेदार किए, उसमें कोई किराए का काम बात ही नहीं उसमें। और एक ऐसा एक भी मर्डर नहीं हुआ जिस वो प्री प्लान्ड है साल में। जो कुछ भी है वो छोटे छोटे इश्यूज़ पे ही हुए पूरे। अभी तक जो भी प्रिवेंटेबल है उनसे ज़्यादातर एक जो रेन बाज़ार का हुआ उससे, उसके बगैर इस साल में पूरे जो है वो छोटे छोटे इश्यूज़ में हुए, रिश्तेदारों में हुए, नेबर्स में हुए और एक दो सेक्सुअल जेलसी के वजह से भी ऐसा कुछ मर्डर्स भी हुए। सर, ये मर्डर्स पूरे जो आज तक इस साल में जो मर्डर्स हुए एक ही प्री प्लान मर्डर है, जिसे पहले से थोड़ा प्लान बना के उसको टारगेट करके किया। बाकी सब में उसी टाइम पे उस टाइम पे जो जज्बा में करने वाले पूरे
मर्डर्स है, इसको बहुत हम समझते हैं कि एक मर्डर है जिसमें, और उसमें भी एनआईए के आला ओहदेदारों ने रियासत तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में साबिका नक्सलाइट्स की रिहाइश गांव पर बड़े पैमाने पर धावे किए हैं। तफसीलात के मुताबिक एनआईए ओहदेदारों ने नागौल में रवि शर्मा नामी नक्सलाइट, जो कि साबिका नक्सलाइट कहलाते हैं, उनके मकान पर धावा किया, जबकि अलवाल के अलावा आंध्र प्रदेश के इलाके विशाखापट्टनम और प्रकाशम में भी इस तरह के धावे किए गए हैं। इस सिलसिले में तफसीलात आनी बाकी है। आखिर में देखेंगे सुर्खियां एक बार फिर। धान खरीदी के मामले में रियासत की सियासत में गर्मी। वज़ीर आला KCR की क़यादत में मरकज़ी हुकूमत के खिलाफ इंदिरा पार्क पर महाधरना। अंदरून 2 यौम किसानों से धान खरीदी का ऐलान करने का किया गया मुतालबा। वज़ीर आला KCR ने धरने पर बैठने से कबल इमाम जामिन पहनने से किया इनकार। वज़ीर दाखिला महमूद अली मायूस। हुज़ुराबाद ज़िमनी इंतखाब के नतीजे का असर, वीडियो हुआ वायरल। वज़ीर आला KCR रियासत के किसानों की मौत के जिम्मेदार। किसानों के मामले पर एहतजाज एक ड्रामा। ई राजेंद्र ने KCR पर लगाया इल्ज़ाम। ईस्ट जोन टास्क फोर्स टीम और अफजलगंज पुलिस की मुश्तरका कार्रवाई। 57 लाख रुपये मालियती ममनुआ जर्दा प्रोडक्ट्स किए गए जब्त। कमिश्नर पुलिस की मीडिया कॉन्फ्रेंस। सदर मजलिस बैरिस्टर ओवैसी की हिदायत पर मुख्तलिफ ज़िलाई MIM यूनिट्स ने मलून वसीम रज़वी के खिलाफ दर्ज करवाई शिकायत। फौरी गिरफ्तारी का किया गया मुतालबा। इसी के साथ रूबी न्यूज़ यहीं अख्ताम पजीर होती है। रियासती, कौमी और बैन अवी खबरों के लिए देखते रहिए रूबी न्यूज़। हम इस उम्मीद के साथ आपसे इजाज़त लेंगे कि आपका आने वाला दिन अच्छा होगा। अस्सलाम वालेकुम।